بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان میں مہلک وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری۔ آج مزید 47 مریض کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 29,648 ہو گئی۔ 1,716 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 54,638 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,914 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.1% رہی۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 14,74,075 ہو گئی۔ زندہ دلانے لاہور میں پاکستان سپر لیگ 7 کے دوسرے مرحلے کرکٹ میچز کا آج سے آغاز ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطان اور پشاور زلمی کا جوڑ پڑے گا۔ چوکو چھکوں کی ہوگی برسات۔ 50% شائقین کرکٹ کو میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ ٹکٹوں کی فروخت بھی جاری، جبکہ لاہور میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ سہیل عباس بلوچ سے۔ جی سہیل، بتائیے گا۔ جی، زندہ دلانے لاہور میں آج پاکستان سپر لیگ 7 کے میچز کا آغاز ہوگا، اور آج ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان جو ہے وہ ٹاکرا ہوگا، آج جس میں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوگی، اور شائقین کرکٹ کی 50% جو ہے وہ آج میچ دیکھنے کے لیے انٹری ہوگی، انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ آج جو ہے وہ چوکے چھکوں کی جو ہے برسات ہوگی، اور آج کا کرکٹ کا میلہ جو ہے وہ لاہور میں شام آغاز ہوگا، اور اس کے بعد 27 فروری تک PSL کے میچز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں کسی بھی عام ٹریفک کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ٹریفک کا پلان جو ہے وہ بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ تمام تر روٹس جو ہیں اس کو حتمی شکل دی گئی ہے، جبکہ قذافی اسٹیڈیم میں بھی جو ہے وہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کل ٹیموں نے جو ہے وہ پریکٹس کی تھی، اور آج سے جو ہے وہ باقاعدہ میچز کا آغاز ہوگا، اور لاہوریے جو ہیں وہ آج قذافی اسٹیڈیم میں PSL کے میچز کا آغاز جو ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ سکیں گے، اور آج کا کرکٹ میلہ جو ہے وہ لاہور سے سجے گا۔ جی، بطور میزبان PSL میں خدمات سر انجام دینے والی گلوکارہ، ماڈل اور سابق مس ورلڈ آسٹریلیا ایرن ہالینڈ نے ایونٹ کے پہلے حصے کو کامیاب بنانے کے لیے کراچی شہر اور اس میں رہنے والے شائقین کرکٹ کا خاص شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ ایرن ہالینڈ گزشتہ سیریز کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان میں ہے۔ PSL 7 کا پہلا مرحلہ ختم ہونے پر انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کراچی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے شوہر بین کٹنگ بھی PSL میں پشاور زلمی کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور کراچی میں ایونٹ کے دوران گاہے بگاہے اپنی اہلیہ کے ساتھ نظر آئے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں ہی ایرن ہالینڈ کی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں وہ انہیں دور کھڑے ہو کر سالگرہ کی مبارکباد دیتی نظر آئیں۔ چند روز قبل جب بین کٹنگ ایک گیند پر آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گئے تو کیمرے کا رخ اچانک ایرن ہالینڈ کی جانب کیا گیا۔ منظر دیدنی تھا جسے سبھی نے انجوائے کیا۔ ایرن کو مقامی لباس میں دیکھ کر پاکستان میں اکثر مداح ان کی تعریف کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایرن نے جب اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو کیا یہ دیوار پر لگا ماربل لے جا سکتی ہوں؟ جواب میں ایک صارف نے لکھا کہ اگر آپ کو یہ واقعی اتنا پسند ہے تو لے جائیں، کیونکہ پورا کراچی آپ کا ہی ہے۔ سارے کرپٹ پکڑے جانے کے ڈر سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے پیٹ پھاڑنے کے بجائے دونوں کے پیٹ مل رہے ہیں۔ انہیں صرف عمران خان کا ڈر ہے۔ پنجاب میں نیوٹرل امپائر بٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ ترقی کس کے دور میں ہوئی۔ سب کو جلدی پڑی ہے کہ اسے فارغ کر دو ورنہ وہ فارغ ہو جائیں گے۔ عمران خان کا فیصل آباد میں صحت انصاف کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا۔ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا، کبھی کسی کو خریدتا۔ علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہا ہے جا کے وہاں۔
वज़ीर-ए-आज़म बुज़दिल है, हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ दो। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज। मुल्तान जलसे में हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी कहा। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही कप्तान की विकेटें गिरना शुरू हो गई। अगर कारकर्दगी पर यकीन है तो आवाम में जाने से डरते क्यों हो। अदम एतमाद की तजवीज़ ना मानने वाले अब इसी पर बात पर आ गए। मार्च बहुत दूर है, यकीन है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। भुट्टो, हम इमरान को चैलेंज करते हैं, आप घबरा नहीं चुके हैं। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से। बुज़दिल है आपका वज़ीर-ए-आज़म। पहला फेज भी हारा था, दूसरा फेज भी हारेगा, लॉन्ग मार्च भी हारेगा, अदम एतमाद भी हारेगा और आने वाले इंतखाबात में भी हारेगा। हमारा मार्च शुरू होने से पहले कुछ हमारे दोस्तों जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं और दोस्त हमारा आपका ये मुतालबा मानेंगे। इस वज़ीर-ए-आज़म पे हमला होना है। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इमरान खान आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। सिलेक्टेड की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का तंज कहा। इमरान खान की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थी। तकरीर से लगता है इनके घबराने और अवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। साद रफ़ीक के मुताबिक इमरान खान का जाना ठहर चुका है। नून लीग ने हुकूमत पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। टारगेट पंजाब होगा या विफाकी दारुल हुकूमत, फैसला जल्द सामने आ जाएगा। और कप्तान का खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर फैसल वाडा ताहियात नहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। बतौर वजीर और सेनेटर ली गई तमाम तनख्वाहें और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म। फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत पर झूठा हल्फनामा जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसल वाडा की सेनेट की सीट खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। दोहरी शरीयत केस में सेनेटर फैसल वावडा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार। सेनेट से कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा को बतौर रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर तमाम तनख्वाहें और मराद भी 2 माह में वापस करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ते वक्त फैसल वावडा दोहरी शहरियत के हामिल थे। बार बार हिदायत के बावजूद फैसल वावडा अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा नहीं करा सके। नादरा ने फैसल वावडा को अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन नादरा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट देने का मजाज नहीं। इस इल्तवा में डालने पर फैसल वावडा पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावडा ने बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया। फैसल वावडा चाहे तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार सेनेटर कादिर मंदोखेल कहते हैं कि फैसल वावडा के खिलाफ केस जीता, अब सेनेट में खाली होने वाली नशिस्त भी जीतेंगे। वो सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपी है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के खिलाफ केस 21 जनवरी 2020 को दायर किया गया। 22 माह से जायद अरसे तक 23 समातें हुई, जबकि 23 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। बरतानवी अदालत से बेगुनाह करार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। 2 साल तक 4 ममालिक में ऑफशोर कंपनियों अकाउंट्स की छानबीन की गई। शहबाज फैमिली के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या ओहदे के गलत इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 1000 में से 500 सफ़ात जारी कर दिए। शहबाज फैमिली के तमाम असासे भी बहाल कर दिए। शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं। लगभग 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदलो इंसाफ की शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर क्लीन चिट। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत के हुक्म पर दस्तावेजात भी जारी कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ की जाने वाली तहकीकात की अदालती दस्तावेजात सामने आ गयी। 1000 सफ़ात में से अभी सिर्फ 500 सफ़ात जारी किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के अकाउंट्स और मालियाती मामलात की 15 साल तहकीकात में कोई मुजरिमाना तर्जमल या फ्रॉड का सबूत नहीं मिला, जिसके बाद नवंबर 2021 में तहकीकात को बंद कर दिया गया। एनसीए ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को क्लियर करार देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज कर दिया और शरीफ खानदान के तमाम असासे बहाल कर दिए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों के इनके मुआविनीन और साथियों की बाकियात को ख़त्म कर देंगे। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल, बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज दहशतगर्दों के मुआवनीन और साथियों की तमाम बाकियात को खत्म कर देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। शुरका को पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की मुखालिफाना कोशिशों का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। शुरका ने बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों को बहादुरी से नाकाम बनाते हुए मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। सिपा सलार ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब ओढ़ने पर पाबंदी के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की गई है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नाज़िमुल उमूर पर जोर दिया गया कि वह भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से कर्नाटक में RSS BJP के इत्तेहाद की सरबराही में चलाई जाने वाली हिजाब मुखालिफ मुहिम पर पाकिस्तान की इंतहाई तशवीश से आगाह करें। पाकिस्तान ने जोर दिया कि भारत सरकार को कर्नाटक में ख़वातीन के खिलाफ हरसानी के मुर्तकिब अफराद को एहतसाब के कटहरे में लाने और मुस्लिम ख़वातीन की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय रियासत कर्नाटक में मुसलमान तालिबा पर इंतहा पसंदों के हमले पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि हिजाब में तालिबा पर हमले की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि ये जुनून पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। भारत में अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। हम हर फोरम पर इस जनूनियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का आलमी बरादरी से ऐसे वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हिंदुस्तान में होने वाले वाक़यात का नोटिस लें। हिंदू इंतहा पसंदों को बहादुर मुसलमान लड़की मुस्कान खान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय हुक्मरान जमात BJP के वज़रा हवास बाख्ता हो गए और ख़वातीन के लिबास को ही जिनसी हिरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात का सबब करार दे दिया। ताहम कांग्रेस ने इस वज़ीर को पागल करार दे दिया है। रियासत कर्नाटक से BJP के रुकनी असम्बली MP रेणुकाचार्या का दिमाग ख़राब हो गया। इंतहा पसंद हिंदुओं के मकरू धंधों की मजम्मत की बजाय उल्टा ख़वातीन के लिबास को ही जिनसी हिरासगी का वजह करार दिया। बददिमाग और बदजुबान वज़ीर ने यहाँ तक कह दिया कि ख़वातीन का लिबास ही मर्दों को अपनी जानिब मतवज्जह करता है। BJP के इस वज़ीर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कांग्रेस पार्टी के MLA लक्ष्मी हेबालकर का कहना था कि BJP का वज़ीर अपने दिमाग के साथ साथ ज़ुबान पर भी काबू खो चुका है। BJP के तआस्सुब पसंद वज़ीर का बयान कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी के इस मौक़िफ़ के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के आइन के तहत ख़वातीन को हिजाब समेत इनकी मर्ज़ी का हर लिबास पहनने का हक़ हासिल है। ख़वातीन को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। सराय आलमगीर के 20 से ज़ायद देहात आज भी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके का वाहिद बुनियादी मरकज़ सेहत अरसा दराज से बंद पड़ा है। अहले इलाका को इलाज के लिए 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके सराय आलमगीर शहर जाना पड़ता है। मज़ीद बताएंगे सैयद अमजद शाह। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर के नवाही इलाकों के लोग सेहत जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। मैं इस वक्त BHU पीरखाना में मौजूद हूँ। ये सराय आलमगीर शहर से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है और ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर ना अमला तैनात है, इसकी बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। बहुत अरसे तो बंद है, इधर रोड बहुत ख़राब है तो जितने ग्रां के लोग बहुत मजबूर हैं। इतों सराय आलमगीर भी 25 किलोमीटर दूर है। इतना लैके जाने कई आदमियों की राह डेथ भी हो जाती है। सेहत की कोई बुनियादी सहूलियात में असर नहीं। ज़ोर इस अमर किया कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे, BHU की यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाए ताकि अहले इलाका बआसानी यहाँ पर अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। जी
सिंकेला के जट्टू में 2 लड़कियों से ज्यादती का मामला, तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के साथ ही मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों से ज्यादती नहीं हुई, इनके जिस्म पर कोई जख्म है, न खून के निशानात। मजीद तहकीकात के लिए सैंपल हैदराबाद भिजवा दिए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुजरावाला की तालिबात के लिए खुशखबरी, बीएस की क्लासेस के लिए इन्हें शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कमिश्नर गुजरावाला ने कायद-ए-आज़म डिवीजनल पब्लिक स्कूल के गर्ल्स कैंपस में बीएस क्लासेस के लिए डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान। जी बिल्कुल, गुजरावाला के QDPS कॉलेज के अंदर जो है वो गुजरावाला डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह किया गया है और ये गुजरावाला की बच्चियों के लिए खुशखबरी है कि इसी साल के आखिर में जो है वो यहाँ पर BS की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये ब्लॉक तैयार होगा, जिसका आज संगे बुनियाद जो है वो कमिश्नर गुजरावाला जुल्फकार अहमद घुमन साहब ने अपने हाथों से रखा है। कमिश्नर गुजरावाला हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो BS क्लासेस है ये इंटरनेशनल लेवल की 4 ईयर क्लासेस होती है, तो इसकी बड़ी कमी थी। अब इसकी वजह से इस अदारा जो है हमारा DPS, इसकी एलिवेशन भी हो गई है और इसके बाद हम इसके A लेवल क्लासेस जो हैं उसकी भी शुरू करने के लिए जो है वो हमने ख्वाब देखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो भी पूरा होगा। का कहना है कि इसी साल में ये ब्लॉक मुकम्मल होगा और इसी साल में जो है वो BSS की क्लासेस शुरू हो जाएगी। जी, जैकबाबाद में शहीद अल्लाह बख्श सोमरू के नाम से 3 रोज़ा किताब मेला शुरू हो गया। किताबों के शौकीन बड़ी तादाद में सस्ती और म्यारी कुतुब खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए असद अली मुगल की रिपोर्ट। किताब बीनों की तशनगी दूर करने के लिए जैकबाबाद के DC चौक में शहीदुल्लाह बख्श सोमरो के नाम से 3 रोजा किताबी मेला सज गया। मेले में मुख्तलिफ ज़बानों और मज़ामीन की किताबें रखी हैं, जिनसे शौकीन हजरात खूब मुस्तफीद हो रहे हैं। क्योंकि बुक्स के अलावा नॉलेज इंसान में आ ही नहीं सकती। बुक्स पढ़ें और नॉलेज हासिल करें, अपनी सोसाइटी के हवाले से जो है ना वो हमें फ़ायदा दे सकती हैं। एक शहरी ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नौजवानों को किताबों से दूर कर दिया। इन हालात में ऐसे किताब मेले होना बहुत जरूरी है। ये मेले यहाँ पे लगने चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया के वजह हमारे जो लोग हैं वो किताबों से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं। किताबें पढ़ने वालों की जिंदगी का सरमाया होती हैं, जिन्हें पढ़ने से इंसान आसूदगी महसूस करता है। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। पलटना झपटना, झपटकर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। डेरा इस्माइल खान में मार्शल आर्ट मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से और अफगानिस्तान से आए फाइटर्स ने शिरकत की। देखिए रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में लायंस डीन्स फाइटिंग चैंपियनशिप सीजन 5 चैंपियनशिप 2022 अफगानिस्तान समेत मुल्क भर से मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। बलोचिस्तान की खातून फाइटर ने कहा कि चैंपियनशिप में शिरकत करके उन्हें अच्छा लगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर इरफान ने कहा कि चैंपियनशिप कराने का मकसद मुकामी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना है। इवेंट यहाँ पे मुनक़िद करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोकल टैलेंट है इसको आगे लेके आना है। मेहमान खुसूसी फिक्सैट के बानी और MNA आलमगीर महसूद थे। तकरीब से खिताब में कहा कि दहशत गर्दी खत्म हुई, अमन आ गया, जिसका वाज़ेह सबूत इलाके में खेलों का आगाज है। हमारे कबायली अज़ला जो सबसे पसमानदगी में चले गए, सबसे पीछे रह गए, जंग का शिकार थे, वहाँ से बच्चे आपको टैलेंट नजर आ रहा है। जो चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की गई। रिजवानुल्लाह, न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।